Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Shafiq Ahmad and today we are going to discuss narrative essay Two Brothers, unit 2.4, exercise number 1, page number 41. इन क्लास 9 बुक आपके पेज नंबर 41 में एक्सरसाइज नंबर 1 है नैरेटिव essay टू ब्रदर्स. So let's start reading and then I will explain story of two brothers. Tanveer and Junaid were twin brothers. They both looked exactly alike, but in personality they were quite different in nature. They were alike. वो दो brothers थे, Tanveer and Junaid twin, और they were similar, but in their nature, in their habits, they were quite different. Junaid always thought carefully before doing anything, while Tanveer did things without thinking. Their father thought of a plan to make Tanveer realize that he should think before doing things. तो उनके फादर तनवीर जुनैद जब भी कोई चीज़ करता था तो हमेशा वो सोचता था केयरफुली और प्लानिंग करता था, सोचता था. जो तनवीर जो था वो बगैर थिंकिंग है, बगैर सोच के हर काम करता था, जल्दबाजी करता था. तो उनके फादर ने एक प्लानिंग की कि ताकि कोई कंपटीशन करे या कोई प्लानिंग करे कि जिससे वो तनवीर को रियलाइज़ करवा सके, उसको समझा सके कि जब भी कोई काम किया जाए या कभी कोई प्लानिंग की जाए तो उससे पहले एक सोचना चाहिए. One day he called two brothers and told them that he had saved enough money to buy one of them a bicycle. Since he had money only for one bicycle, he had decided to set up a competition. The one who would win the competition would get the bicycle. The competition was that both of them should set out right after the morning prayers and walk a distance, as much as each one could, and return by sunset. The one who would manage to complete the task would get the prize. Both the twins readily agreed. अच्छा, उनके फादर ने सोचा कि कंपटीशन किया जाए. उनके पास इतने पैसे नहीं थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था. तो उन्होंने क्या कहा कि मैं कंपटीशन अरेंज कर रहा हूँ, तो जो जीतेगा तो उसको साइकिल मिलेगी, क्योंकि ही हैड ओनली वन बाईसाइकिल. तो उन्होंने कंपटीशन रखा कि जो भी सुबह सवेरे वॉक के लिए निकले, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तय करें और सनसेट से पहले वो वापस आ जाएं. और जो वापस आ जाएगा टास्क को फॉलो करेगा और टाइम पे आ जाएगा तो उसको वो प्राइज़ दिया जाएगा. और उन दोनों ने कहा ठीक है, वी आर ready. Next morning, both the brothers set off. Set off means start their journey. As usual, Tanveer sprinted off. Sprinted off means to do something fastly than the normal situation. Jaldi karna. Tanveer sprinted off in order to cover a greater distance and win the prize. But Junaid held back and thought about what he should do before setting off. तनवीर को बहुत जल्दी थी कि मैं बहुत जल्दी करूं और जल्दी जाऊं और प्राइज़ जीत सकूं. लेकिन जुनैद ने सोचा कि उसको क्या करना चाहिए अपने डिस्टेंस कवर करने से पहले या कंपटीशन में जाने से पहले. ही प्लान्ड. तनवीर ran far ahead to the end of the town and further because he wanted the prize. Junaid, on the other hand, walked until midday and turned around to return home. When Tanveer felt that he had run far enough and Junaid would never be able to catch up with him, he turned round to return home. Unfortunately, because he had been running so fast, Tanveer was very tired, so the return was slower. When he finally returned home, long after sunset, he found that Junaid was already home. जब तनवीर ने बहुत डिस्टेंस कवर करने के लिए बहुत जल्दी की, बहुत भागता गया ताकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकूं. लेकिन जुनैद जो कि उसका ब्रदर ट्विन ब्रदर था, उसने सोचा जब वो डिस्टेंस कवर किया तो मिड डे मीन्स हाफ डे तक, नून तक वो पहुंचा और फिर वो उसने वापसी तैयार की कि मैं वापस जाऊं और टाइम पे पहुंच जाऊं. लेकिन तनवीर बहुत दूर जा चुका था एंड
और एंड जुनैद वुड नॉट बी एबल टू कैच हिम। तो उसने सोचा कि जुनैद तो पहुंच भी नहीं सकेगा। तो जब वो वापस पहुंचा तो वो बहुत थका हुआ था और वो टाइम पे वो उस जगह पे पहुंच नहीं सका, जबकि जुनैद जो था वो टाइम पे पहुंच गया। द थिंग इज़ दिस कि तनवीर वॉज इन हरी, ही डिड नॉट लिसन इंस्ट्रक्शंस, उसने कुछ सुना नहीं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, जल्दी की और डिस्टेंस तो बहुत तय कर लिया, लेकिन जब वो वापस आना चाह रहा था और वापस आ रहा था तो वो टाइम पे पहुंच नहीं सका। बेसिकल इंस्ट्रक्शन ये थी कि आपको जाना है, जितना डिस्टेंस कवर कर सकें वो करें, और आपको वापसी जो है सनसेट से पहले पहुंचना है। दिस वॉज इंस्ट्रक्शंस विच तनवीर डिड नॉट लिसन प्रॉपरली, he did not follow properly. Tanveer demanded his prize for running very far, but his father pointed out that he had not returned within the time he was supposed to be back. तनवीर ने कहा कि मुझे प्राइज़ देना चाहिए, मुझे इनाम मिलना चाहिए, मिले। तो उसके फादर ने कहा कि आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, आप टाइम पे नहीं पहुँचे। इंस्ट्रक्शंस ये थी कि आपको सनसेट तक पहुँचना है। So the prize would be given to Junaid because he had completed the task according to instructions. तो जुनैद को ये प्राइज़ दिया जाएगा क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो किया है। Unit 2.4 exercise number 1. Now these are the questions. A. Why was the twins' father worried? B. What did he decide to do? C. Who won the competition? Why did he win? C. Who lost the competition? Why did he lose? E. What lesson do you think Tanveer learned? Unit 2.4 exercise number 1. Two brothers. Now we are going to discuss question answers of exercise 1. A question: why was the twins' father worried? Answer: twins' father was worried because he had saved enough money to buy one of them a bicycle. B question: what did he decide to do? Answer: he decided to set up a competition. C. Who won the competition? Why did he win? Answer: Junaid won the competition. He won the competition because he had completed a task according to instructions. D question: who lost the competition? Why did he lose? Tanveer lost the competition. He lost the competition because he had not completed the task according to given instructions. Last question E. What lesson do you think Tanveer learned? Now this question is objective. You can write in your own opinion, your own words. Answer can vary from person to person. So I have written few answers. Tanveer learned many lessons. Like number 1, he should always follow the instructions. पहला ये कि उसे instructions को हमेशा follow करना चाहिए. Next, he should listen others carefully. And other option can be he should think before doing any task carefully. So these were the question answers that we have discussed. Exercise number 2, unit 2.4. Imagine that you are Tanveer's teacher. You wanted him to win but he was not successful. What do you think he should do, not to do? अब आप इमेजिन करें कि आप तनवीर के टीचर हैं और आप चाहते थे कि वो जीत जाए बट वो नहीं जीत सका। अब आप उन्हें बताएं कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अब आपको खुद को एक नैरेटिव ऐसे लिखना है बाय कीपिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर माइंड। नंबर 1, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द कॉम्पिटिशन। आप बताएं कॉम्पिटिशन क्यों किया जा रहा है। स्टेट व्हाट ही डिड एंड व्हाई। तो तनवीर ने क्या किया और क्यों किया। डिस्क्राइब व्हाट हिज ब्रदर डिड, और उसके ब्रदर ने क्या किया। ठीक है। एक्सप्लेन हु वन द कॉम्पिटिशन एंड वाई, और आप एक्सप्लेन करें, पूरी कहानी बताएं नैरेटिव ऐसे में कि क्या हुआ और किसने ये कॉम्पिटिशन मुकाबला ये जीता और क्यों जीता। आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स दैट तनवीर मेड, और इस स्टोरी में इन दिस नैरेटिव ऐसे यू विल टेल, यू विल डिस्क्राइब what were the mistakes, what were the shortcomings of
तनवीर, आप इस पूरे नैरेटिव ऐसे बताएंगे कि तनवीर की क्या क्या मिस्टेक्स थी। लास्ट, एक्सप्रेस योर रिग्रेट एंड एक्सप्लेन हाउ वुड यू लाइक हिम टू चेंज। आप ये भी बताएंगे कि भाई ना कि आपको बहुत पछतावा हुआ कि उसने ये गलतियाँ की और आप चाहते हैं कि वो क्या करे ताकि वो चेंज हो सके और वो भी मुकाबला जीत सके। सो दिस इज़ एक्सरसाइज नंबर 2, टास्क दैट यू हैव टू अटेम्प्ट इट। यूनिट 2.4, एक्सरसाइज नंबर 2, टू ब्रदर्स नैरेटिव एसे। नाउ अब मैं एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये मैंने नैरेटिव एसे लिखा है जो मैं एक्सरसाइज 2 में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और मैंने ये नैरेटिव एसे 5 पैराग्राफ में स्टोरी लिखी है। Tanveer and Junaid were two brothers. They both were talented and hardworking students of the class, but they both were different in nature. Tanveer usually used the bookish language and ideas while attempting any question, and Junaid followed his own creative ideas. In order to make Tanveer realize that creativity enlightens the mind, while cramming enhances the complexity, a scheme of competition was planned. इसका मतलब ये है पैराग्राफ नंबर 1 का कि तनवीर और जुनैद टू ट्विन ब्रदर्स थे और दोनों जो थे वो बहुत टैलेंटेड थे, हार्ड वर्किंग थे, लेकिन उनकी नेचर डिफरेंट थी एक दूसरे से। तनवीर बुकिश लैंग्वेज रटाफिकेशन यूज़ करता था, कॉपी पेस्ट एज इट इज़, जो पढ़ा बस वो याद करके लिखता था, लेकिन जुनैद हमेशा हर चीज़ को सोच समझ कर और अपने लफ्ज़ों में अपनी क्रिएटिविटी से वो उसको लिखता था। उन दोनों को इसलिए कि तनवीर को रियलाइज़ किया जाए कि जो क्रिएटिविटी है वो किसी को आइडियाज़ को, माइंड को और बेहतर करती है, वो उसको समझ, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती है, लेकिन जो रटाफिकेशन है या क्रैमिंग है वो आपको और कंफ्यूज करता है, आप चीज़ें समझ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए एक कंपटीशन प्लान किया गया। One day both brothers were called and told that a test would be conducted from them. They both were allotted creative writing topics. The prize of 2000 rupees was also announced for the winner. The both were restricted to use the plagiarized material. They were given 2 days for the preparation. उन दोनों को बुलाया गया और उनको ये बताया गया कि अब एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और उन दोनों को ये भी किया गया कि उनको एक क्रिएटिव राइटिंग के टॉपिक्स दिए जाएंगे और जो भी जीतेगा तो इसका प्राइस जो होगा वो 2000 रुपये होगा। और दोनों को ये कहा गया कि आप कुछ भी लिख के आएँ, लेकिन किसी के कॉपी मटेरियल नहीं करें, प्लेजराइज नहीं हो, किसी कहीं एज इट इज़ लिख के नहीं आए, आप अपनी तरफ से तैयारी करें, अपने लफ्ज़ों में इसको लिखेंगे। दे बोथ वर गिवन 2 days फॉर द प्रिपरेशन। उन दोनों को 2 दिनों का टाइम दिया गया कि आप तैयारी करें, क्रिएटिव राइटिंग जो भी आपको टॉपिक्स दिए गए और आपका टेस्ट लिया जाएगा। दे बोथ लेफ्ट द स्कूल एंड रीच द होम। एज यूजुअल तनवीर स्टार्टेड टू सर्च द आइडियाज़ about the topics by opening the pages of different books. After a day of tireless search, as he could not find the ideas from the books, he started to search the topic from different websites. He could not find the related material there too, so desperately he became anxious. तनवीर ने बहुत कोशिश की, बहुत बुक्स देखे, लेकिन उसको कोई आइडियाज़ उस टॉपिक्स पर नहीं मिल सके और वो जब वो बहुत थक गया तो वो बहुत उदास हो गया और बहुत परेशान भी हो गया। उसके बरक्स ऑन द अदर हैंड जुनैद टुक अ रेस्ट एंड स्टार्टेड टू थिंक थॉरोली अबाउट द टॉपिक्स। जुनैद ने आराम किया, सोचा उन टॉपिक्स के बारे में। ही कलेक्टेड सेवरल आइडियाज इन हिज माइंड बाय थिंकिंग डीपली। उसने बहुत सारे आइडियाज़ खुद लिखे, सोचे अपने माइंड से। 4th paragraph of the story. As the test started, Junaid attempted the test properly and within the given time. जैसे ही उनका एग्ज़ाम, जैसे ही उनका टेस्ट स्टार्ट हुआ तो जुनैद ने आराम से अच्छे तरीके से टेस्ट दिए गए टाइम पे मुकम्मल कर लिया।
Tanveer could not write a single idea as he was habitual of cramming. He was more hardworking as compared to Junaid, but due to lack of creativity, he could not solve the paper on time. लेकिन इसके बरक्स जो तनवीर था वो कुछ भी ना लिख सका क्योंकि उसको आदत थी याद करने की, रटाफिकेशन की। वो कुछ समझता नहीं था और जो वो बहुत हार्ड वर्किंग था जुनैद के मुकाबले, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी बहुत कम थी, तो वो पेपर सॉल्व नहीं कर सका। एज द रिजल्ट अनाउंस, जुनैद वॉज डिक्लेयर द विनर ऑफ द प्राइज बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिव माइंड। और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो जुनैद वॉज सक्सेसफुल, ही वॉज विनर बिकॉज ही यूज हिज क्रिएटिव आइडियाज़। वो कामयाब हो गया टेस्ट में। ही गॉट द प्राइज बिकॉज ही यूज हिज आइडियाज़। उसने अपनी थिंकिंग क्रिएटिविटी यूज़ की थी, अपने लफ्ज़ों में लिखा था। वाइल तनवीर फेल्ट ashamed of his mistake of depending on the bookish ideas। लेकिन तनवीर बहुत उदास था, बहुत शर्मिंदा था कि उसने बहुत मिस्टेक्स की, क्योंकि वो डिपेंड करता था बुकिश आइडियाज़ में। वो सिर्फ याद करता था एज इट इज़, बुकिश लैंग्वेज, वो रटाफिकेशन। ही हैड नो कॉन्सेप्ट, उसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो उस चीज़ों को समझता नहीं था। द प्राइज वॉज गिवन टू जुनैद एंड तनवीर वॉज इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द क्रिएटिविटी इन फ्यूचर। प्राइज़ जो था वो जुनैद को दिया गया 2000 रुपीज़ का, और तनवीर को इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप जो है हमेशा चीज़ों को सोचा और समझा किया करें और अपने लफ्ज़ों में भी लिखा करें। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2, कंप्लीट नैरेटिव एसे। एंड आई होप you understand narrative essay. If you have any difficulty or any query, you can write in comment. Thank you very much.